Hello everyone, my name is Swati Vanjari and I'm excited to welcome you all to my Python programming series. Whether you are a student or working professional or someone who is just curious about coding, you are in the right place. In this series, I'll teach you Python step by step in very simple and practical way so you can learn at your own pace and apply it in real life. So grab your notebook, subscribe to the channel and let's start this Python journey together. Happy learning. Starting with this Python programming syllabus. So, we'll include introduction to the Python in which we will see what is Python, history and features of Python, Python versus other programming languages. In module 2 we'll see the variable and data types, typecasting, input output and operators in Python. In module 3, we'll be covering all the control flows, like conditional statement, nested, and loops. In data structure, we'll see all the data structure present in the Python, like string, list, tuple, set, dictionaries. In module 5, we'll see about functions, where we are checking out on functions like defining and calling in function argument, and return values. So, we'll be covering these modules and packages, file handling, exception handling, object oriented programming, advanced Python, multi-threading and other extensions which is used in Java like NumPy, Pandas. So we'll see this step by step, one by one with the examples and uh, likewise say that whether you are a student, working professional, or someone who is just curious about coding, this is all about everyone. So I will make it very simple to you and in practical way so that it will be like you can learn at your own pace and apply on it. So chalo start करते हैं with the introduction to the Python. Python क्या है? ठीक है. What is Python? Python is a general purpose programming language. Python एक general purpose है. General purpose मतलब कि लाइक इसका यूज़ हम कई तरह के कामों के लिए कर सकते हैं, जैसे कि वेब डेवलपमेंट मतलब वेब पेजेस बनाना. ठीक है, वेब पेजेस वेबसाइट्स बनाना, उसके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं. डेटा साइंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे डेटाबेस इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पर. मशीन लर्निंग में यूज़ कर सकते हैं, एआई के लिए, एंड ऑटोमेशन के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं. सो दैट्स द रीज़न इट इज़ कॉल्ड एज जनरल पर्पस लैंग्वेज. ऑल्सो इट इज़ यूज्ड इन स्क्रिप्टिंग रोल्स. जैसे कि लिनक्स होता है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में शेल होता है, तो वहाँ पर हम स्क्रिप्ट लिखकर किसी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, फाइल्स के साथ बात कर सकते हैं. ठीक है, उसी तरह हम यहाँ पर भी स्क्रिप्टिंग अप्लाई कर सकते हैं. सो सो दैट्स द रीज़न पाइथन इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज वेल एज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. ठीक है. सो पाइथन क्या है? एक अगेन पाइथन इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. लो लेवल होता है, मीडियम लेवल एंड हाई लेवल. सो पाइथन क्या है? लो हाई लेवल है. लो लेवल मतलब क्या होता है? मशीन कोड वाली जो लैंग्वेजेस होती है या फिर असेंबली कोड होता है, उनको लो लेवल लैंग्वेजेस कहा जाता है, बिकॉज वी कैन नॉट ह्यूमन्स कैन नॉट डायरेक्टली रीड दैट लैंग्वेज. ओके. So make it easier we'll be always using high level because it's more readable to the humans. ठीक है, तो पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है विच इज़ इंटरप्रेटेड, मतलब पाइथन इज प्रोसेस एट रन टाइम बाय द इंटरप्रेटर से रन टाइम हम पाइथन जैसे कि कंसिडर करो आप सी लैंग्वेज में क्या होता है कि पहले आप कोड लिखते हो और उसको फिर कंपाइल करते हो, एंड देन वो क्या करता है, जो भी कोड आपने लिखा है उसको किस में कन्वर्ट करता है? मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, एंड उसके बाद वो कोड रन होता है. मतलब पूरा का पूरा कोड आपको पहले कंपाइल करना पड़ेगा, कंपाइल होने के बाद वो रन होगा. ठीक है. जावा में कैसे होता है? जावा में हम उसको कंपाइल करते हैं फर्स्टली जावा सी कमांड यूज़ करके, एंड देन उसमें क्या होता है कि जावा का जो कोड लिखा है वो हम पहले बाइट कोड में कन्वर्ट होता है.
एंड देन वो बाइट कोड फिर जेवीएम क्या करता है, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। तो जावा इज हाइब्रिड, मतलब वो कंपाइल्ड भी है एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी है। बट पाइथन इज फुल्ली इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। पाइथन में क्या होता है, पाइथन के कोड जब हम रन करते हैं तो वो रीड करता है लाइन बाय लाइन, इंटरप्रेट करता है सोर्स कोड को, वो लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करता है एंड ऑन द फ्लाई उसको कन्वर्ट करता है एंड एग्जीक्यूट करता है बाय यूजिंग पाइथन वर्चुअल मशीन, पीवीएम। ठीक है, सो यहाँ पर कोई भी कंपाइलेशन स्टेप होती नहीं है एंड वन बाय वन हम लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। सो पाइथन इज ए इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरैक्टिव है, मतलब यू कैन यूज अ पाइथन प्रॉम्प्ट एंड इंटरैक्ट विद द इंटरप्रेटर डायरेक्टली टू राइट योर प्रोग्राम्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब क्या होता है, एवरीथिंग विच विल बी गिवन इज रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट। जो भी आप वहाँ पर होगा वो ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस के रिलेटेड ही होता है। सो पाइथन सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यू कैन क्रिएट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट टू मॉडल रियल वर्ल्ड थिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब क्या होता है कि आप जो भी रिलेटिवली वर्ड देखते हो, वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हैं उसको ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस के फॉर्म में लिख कर आप उसमें कोड कर सकते हो। सो सिमिलरली यू कैन अप्लाई दिस ओवर हियर, बिकॉज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये क्या है, एक कंसेप्ट है, एक मेथोडोलॉजी है। एंड दिस मेथोडोलॉजी को सपोर्ट करता है कौन, पाइथन इम्प्लीमेंट करता है। उस मेथोडोलॉजी को कौन इम्प्लीमेंट करता है, पाइथन। तो इस वजह से पाइथन क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बिगिनर्स लैंग्वेज है, बिकॉज पाइथन इज अ लैंग्वेज विच इज बिगिनर, क्योंकि यहाँ पे जो भी हम लिखते हैं विच इज मोरली सिमिलरली टू द इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है, पाइथन इज डिजाइन टू बी वेरी इजी टू रीड एंड राइट। इट्स सिंटैक्स जो होता है इसका वो सिंपल होता है एंड प्लेन इंग्लिश में होता है। सो दैट्स वाई इट इज़ अ वेरी ग्रेट फॉर बिगिनर्स एंड यूज टू टीच प्रोग्रामिंग बेसिक्स के लिए। नाउ वाई पाइथन इज दिस मच फेमस एंड पॉपुलर, बिकॉज इसका सिंटैक्स सिमिलर है। जैसे कि मैंने कहा था कि ये प्लेन इंग्लिश जैसे होता है। इट सपोर्ट मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स। पैराडाइम्स मतलब मेथोडोलॉजी। जैसे कि कहा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये क्या है, एक मेथोडोलॉजी है जिसको कौन फॉलो कर रहा है, पाइथन इम्प्लीमेंट कर रहा है। वैसे ही ये किस किस को सपोर्ट करता है, प्रोसीजरल। जैसे कि सी लैंग्वेज एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है जिसमें सब कुछ फंक्शन के ऊपर चलता है, तो वो उसको भी प्रोसीजरल लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है एंड स्काला जैसी फंक्शनल लैंग्वेज है। स्काला जो है वो एक फंक्शनल लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब सी प्लस प्लस फुल्ली है, फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। जावा नहीं है उतनी, बिकॉज जावा में प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड ऑल प्रेजेंट है एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है। सो दैट्स द रीजन जावा इज नॉट अ फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड प्रोसीजरल है, मतलब सी लैंग्वेज जैसी ही है ये लैंग्वेज। तो इस वजह से इसका यूज़ तो बहुत तरीके से किया जाता है, तो इस वजह से भी फेमस है। एंड इट हैज़ अ ह्यूज कम्युनिटी एंड टोन्स ऑफ लाइब्रेरीज। सो कम्युनिटी मतलब जब हम कुछ, हमें कुछ अगर डाउट आता है इन केस, तो इट शुड बी सॉल्व ना। नहीं तो क्या हो जाएगा, हम पढ़ने जाएंगे और हमारा डाउट ही सॉल्व नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर पाइथन की बहुत बड़ी कम्युनिटी है। यू कैन सर्च, अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप वहाँ पर अपना डाउट लिख सकते हो एंड सम पीपल्स विल कम एंड आंसर योर क्वेश्चन। ठीक है, तो उसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है एंड उसके पास बहुत सारे टन्स ऑफ लाइब्रेरीज है, सो दैट इट विल बी इजियर फॉर यू टू डेवलप योर कोड, लाइक डेवलपमेंट में, डेटा साइंस में, एआई में। जैसे कि ना बताया था इंट्रोडक्शन में ही, सिलेबस में देखा था ना हमने लास्ट में जैसे ये लाइब्रेरीज अवेलेबल है। जैसे कि डेटा साइंस के लिए नमपाई है, पांडाज है, लाइक वेब डेवलपमेंट के लिए फ्लास्क है, जांगो है, पाइथन ऑटोमेशन के लिए सेलेनियम है, स्क्रिप्टिंग है। सो दीज आर दी लाइब्रेरीज विच इज प्रेजेंट इन दी पाइथन। बहुत सारी लाइब्रेरीज प्रेजेंट है, उसकी वजह से क्या होता है कि यूज़ उसका ज़्यादा होता है एंड क्रेज उसका ज़्यादा है, इस वजह से वो पॉपुलर है। और बिगिनर फ्रेंडली है, अगर कोई चाहता है कि मैं प्रोग्रामिंग सीखूं तो वो पाइथन से स्टार्ट कर सकता है, राइट। सो दैट्स द रीजन पाइथन इज वेरी पॉपुलर। नाउ व्हाट इज प्रोग्राम एंड स्क्रिप्टिंग।
प्रोग्राम क्या होता है, बिकॉज हमने देखा अभी कि पाइथन क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है। तो प्रोग्राम क्या होता है एंड स्क्रिप्टिंग क्या होती है? तो प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन सो दैट द कंप्यूटर कैन परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। हम क्या करते हैं, एक जैसे कि कुछ भी यहाँ पर कंसिडर करो, एक कोड लिख रहे हो, उसमें आप क्या करोगे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखोगे, उसको रन करोगे, कंपाइल करके रन करोगे या डायरेक्टली रन करोगे, तो क्या होगा, प्रोग्राम रन होगा। अ प्रोग्राम विल बी कंपाइल्ड, सोर्स कोड कन्वर्ट होगा मशीन कोड में, एंड वो कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रोग्रामिंग। स्क्रिप्टिंग क्या होता है? स्क्रिप्टिंग इज अ कोड रिटन इन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्टिंग इज अ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेनली यूज टू कंट्रोल अनदर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और ऑटोमेट टास्क। उसमें क्या होता है, जैसे कि अगर हम यहाँ पर सीएमडी ओपन करते हैं, दैट इज कमांड प्रॉम्प्ट ओपन जब करते हैं, तो उसमें हम कुछ कमांड्स लिखते हैं ऐसे, जिससे क्या होगा कि हम किसी एप्लीकेशन को रन करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, किसी फाइल को ओपन करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। सो दैट इज हाउ इट मेक्स लाइक, हम इसका क्या कर सकते हैं, कंट्रोल करते हैं अनदर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को, नॉट हम जो लिख रहे हैं उसी को कंपाइल करके सोर्स कोड में कन्वर्ट करके उसी को रन करते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, किसी फाइल को इंस्ट्रक्शन देंगे, किसी फाइल को ओपन करने के लिए या फिर किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के ऊपर टास्क परफॉर्म करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। सो स्क्रिप्ट इज यूजुअली इंटरप्रेटेड लाइन बाय लाइन एंड नो सेपरेट कंपाइलेशन नीडेड। एक एक करके ही वो रन होता है, पहले पहले जो होगा वो पहली लाइन रन होगी, दूसरी बार दूसरी लाइन रन होगी। तो स्क्रिप्टिंग में क्या होता है कि एक एक लाइन ऑफ कोड पहले कंप्लीट होता है, एंड प्रोग्राम में क्या होगा, पहले कंपाइल्ड होगा, उसके बाद सोर्स कोड जनरेट होगा, कंपाइल करेंगे सोर्स कोड को, देन कन्वर्ट होगा मशीन कोड में, एंड देन उसका उसको रन करेंगे एंड विल गेट द आउटपुट। तो ये डिफरेंस होता है प्रोग्राम में एंड स्क्रिप्टिंग में। तो ये दोनों काम कर सकती है हमारी पाइथन लैंग्वेज। ठीक है, नाउ पाइथन किसने बनाई है? पाइथन बनाई है ग्यूडो वन रिसम ने। क्रिएटर ऑफ पाइथन कौन है? ग्यूडो वन रिसम। उन्होंने कहा है कि माई ओरिजिनल मोटिवेशन फॉर क्रिएटिंग पाइथन वॉज द परसीव्ड नीड फॉर अ हायर लेवल लैंग्वेज इन अमीबा। ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड प्रोजेक्ट पे ये काम कर रहे थे जिसका नाम है अमीबा। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर उसी लैंग्वेज के रिलेटेड, उनको लगा कि उसी लैंग्वेज के रिलेटेड हमें कुछ करना चाहिए, तो वो उसके लिए कुछ कोड कर रहे थे। देन आई रियलाइज दैट द डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन यूटिलिटी इन सी वॉज टेकिंग टू लॉन्ग, बिकॉज मोस्टली क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड अगर आपको कोड करना है तो वो आपको बेसिकली सी लैंग्वेज में ही करना पड़ता है, बिकॉज सी लैंग्वेज जो है वो सबसे फर्स्ट आई हुई है एंड इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन डेवलपिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सो दैट्स द रीज़न मोस्टली आपको सी लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ता है रिलेटेड टू ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोजेक्ट्स। तो उन्होंने उनको पता था कि जो सी लैंग्वेज है, इट इज़ टेकिंग टू लॉन्ग। So moreover, doing this thing in the Borrow shell wouldn't work for variety of reason. So there was a need for a language that would bridge up the gap between C and the shell. ठीक है, और ये जो बॉर्निश शेल है ये क्या होता है, जो हमारे लिनक्स होता है या यूनिक्स होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें जो कमांड लाइन होता है ना, जैसे हमने ये ओपन किया था कमांड लाइन, कमांड प्रॉम्प्ट जो भी ओपन किया था हमने यहाँ पर ये, तो उसी के जैसा होता है, यहाँ पर शेल होता है, वहाँ पर टर्मिनल, मैक में टर्मिनल होता है, लिनक्स में शेल होता है। सो उसमें क्या हो रहा था, उनके लिए ये चीज़ें हार्ड हो रही थी, तो उन्होंने उनको एक नीड लगी कि कोई ऐसी लैंग्वेज हो जो कि डिफरेंस ख़त्म कर दे सी एंड शेल के बीच में का। तो उन्होंने पाइथन को इन्वेंट किया। So, according to the Van Rossum, he was looking for a hobby programming project that would keep him occupied during the week of Christmas. Christmas की उन्हें छुट्टियां थी, उनको टाइम पास करना था, उनको कोई हॉबी रखनी थी, हॉबी प्रोजेक्ट बनाना था। तो his office would be closed, hence he decided to write an interpreter for a new scripting language he has been thinking about lately, a descendant of ABC। ये ABC भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही नाम है, दैट वुड अपील टू यूनिक्स। ठीक है, सो ही चोज पाइथन एज अ वर्किंग टाइटल फॉर द प्रोजेक्ट। जैसे हम जैसे कोई न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसका नाम पहले लिखना होता है एंड देन विल हैव टू स्टार्ट द प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो उन्होंने भी क्या किया कि उनको ध्यान में जो भी आया, जैसे कि वो एक
शो के फैन थे, जो कि ये दिख रहा है आपको, मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। ये एक शो है, उसके वो फैन थे, तो उन्होंने उसी के नाम पे उस प्रोजेक्ट का नाम लग दिया, दैट इज पाइथन। ये कोई स्नेक नहीं है, ठीक है। उन्होंने किसके नाम पर ये लैंग्वेज का नाम रखा है, तो ये है मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। इस शो के नाम पर उन्होंने पाइथन का नाम रखा है, नॉट बिकॉज ऑफ द स्नेक। ओके, सो पाइथन किससे इन्फ्लुएंस की गई है? एबीसी लैंग्वेज, सी, सी प्लस प्लस जैसी, जावा, ये सारी लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस हुई है। और पाइथन जब बन गई तो उसने किस किस को इन्फ्लुएंस किया है? तो एफ शार्प, गो लैंग्वेज, रूबी, स्विफ्ट, इन जैसी लैंग्वेज को उसने इन्फ्लुएंस किया, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर पाइथन। पाइथन को किसने बनाया है? ग्यूडो वन रोसम ने बनाया है। कब बनाया है? जब वो अमीबा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे तब बनाया है। ओके, पाइथन एक प्रोग्रामिंग, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग, क्योंकि जनरल पर्पस क्यों है? बिकॉज बहुत सारी चीज़ों के लिए ये काम में आती है। प्रोसीजरल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, फंक्शनल है, स्क्रिप्टिंग है। सो बहुत सारी चीज़ों के लिए काम आती है, इस वजह से भी इसको जनरल पर्पस कहा जाता है। कौन से की चीज़ों के लिए? जैसे कि वेब डेवलपमेंट है, डेटा साइंस है, एआई है, ऑटोमेशन है, इन सारी चीज़ों के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। एंड इट्स इंटरप्रेटेड है। मतलब क्या बताया था? इंटरप्रेटेड मतलब वन लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है एट द रन टाइम। इंटरैक्टिव है, मतलब शेल स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं तो इंटरैक्टिव हुआ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, एंड बिगिनर फ्रेंडली है, बिकॉज सिंटैक्स इसका बहुत ईजी है। सो दिस इज ऑल अबाउट पाइथन। नाउ in the next video we'll see the history of Python. Hope you understand what I discuss with you guys. Please subscribe to my channel and press the bell icon for the next video notification. Thank you so much. Have a great day all of you.